तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस। तो प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इट इज द स्टेट ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम, or simply what we can say, process is an instance of a running program. So the state of a program at the time it is running, it is called as the process, as I have described it in my previous lecture. So today in this lecture I will describe the 5 different states of the process. Any process in its lifespan can exist in one of the 5 states, which I will describe. So basically, operating system need to determine or need to decide whether, that means when a program need to execute and when not to execute. Execution of program involves all of its necessary resources, including hardware and software. And one module named scheduler is there. Scheduler is the module of the operating system which decides this thing, whether CPU will be available for a process and for what the duration. If there are different processes, then scheduler is the module of the operating system which decides for what duration the CPU is available to that process and in which order. So state of a process, soon I'm going to discuss it, which is nothing but the different execution states basically, and which are named by providing the numbers which will be used by the operating system for its processing. So as I told earlier, a process has the 5 different states, which will be described in next slide onwards. So a process should always remain in one of these 5 states, the different states of a process. That means a process changes its states depending on the availability of the resources and the availability of the CPU. Okay, so during the whole of its lifetime of a process, that means starting from the running of a program to its completion. The starting of the running of a program and to its completion, this is the process. So process will be available in one of these 5 states. So here these are the 5 states of the process. First one is the new. The process had just created and nothing is available with this process. Second one is ready or runnable. So it is the state of the process when it is ready to run. Third one is running or executing. That means active. Running or executing in the sense process is running, or simply we can say program is running. Next one is the waiting. The process is waiting for some resources or for some events to be completed. And lastly, terminated. Defunct. Terminated in the sense the program has completed its execution and तो प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा था कि प्रोसेस की 5 स्टेट होती हैं। न्यू, जबकि हमारा प्रोसेस क्रिएट किया गया है। दूसरा है रेडी और रनेबल, जिसमें प्रोसेस हमारा रेडी टू एग्जीक्यूट, रेडी टू रन स्टेट में।
तीसरा है रनिंग और एग्जीक्यूटिंग, जिसमें प्रोसेस रन कर रहा है। चौथा है वेटिंग और ब्लॉक्ड, दैट मींस स्लीपिंग और सस्पेंडेड, आल्सो कॉल्ड एज द स्लीपिंग और सस्पेंडेड। तो वेटिंग में क्या है कि प्रोसेस हमारा वेट कर रहा है किसी इवेंट्स को अकर करने के लिए या फिर किसी रिसोर्स के लिए। और लास्ट है टर्मिनेटेड, डिफंक्ट, दैट मींस प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड फुली। सो नाउ हम इन पांचों स्टेट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन इज द न्यू, दैट मींस क्रिएटेड। तो ये वो स्टेट है प्रोग्राम की जिसमें प्रोग्राम मेमोरी में जस्ट आया है, अभी इसके पास कोई रिसोर्सेस, कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट एक तरह से मेमोरी में अराइव हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्टेट में प्रोसेस को रिकॉग्नाइज तो करेगा, बट कोई सीपीयू या रिसोर्स इसके पास अवेलेबल नहीं है। जब प्रोसेस के पास रिसोर्स अवेलेबल होगा, सीपीयू होगा, तभी तो प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में आएगा। अब दूसरी स्टेट पर चलते हैं, जो है रेडी और रनेबल। रेडी और रनेबल इन द सेंस कि प्रोसेस हमारा रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, बट इसके पास क्या है, सीपीयू नहीं है, एंड ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज आर देयर। मतलब प्रोसेस के पास रन करने के लिए सीपीयू और रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है, तो वो तो है रेडी स्टेट में। सीपीयू है लेकिन वो, सॉरी, रिसोर्सेस हैं लेकिन सीपीयू नहीं है। ओके, रिसोर्सेस हैं बट सीपीयू इज नॉट देयर। या दूसरा ये कह सकते हैं कि टेम्परेरीली स्टॉप्ड है। ये हमारा न्यू स्टेट से रेडी में भी आ सकता है, या हो सकता है कि प्रोसेस पहले रन कर रहा हो और सीपीयू इससे रिमूव हो गया हो, दूसरे प्रोसेस पे चला गया हो, तो ये वाला प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गया हो। तो प्रोसेस मेमोरी में रहेगा, जितनी देर के लिए इसको एग्जीक्यूशन करना है उतनी देर के लिए तो मेमोरी में रहेगा, और जब तक दोबारा इसको सीपीयू नहीं मिलता तब तक फिर ये रेडी स्टेट में ही रहेगा। या वेटिंग में भी आ सकता है रेडी से, अगर कोई रिसोर्स भी इससे रिमूव कर लिया गया हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ रेडी की बात करें हम, रेडी और रनेबल स्टेट वो है जिसमें प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेस हैं बट सीपीयू नहीं है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को रन कराने के लिए, सीपीयू प्रोवाइड कराने के लिए, कितनी देर रन करेगा। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में जिसमें कि टाइम जो है हमारा शेयर होता है बिटवीन द डिफरेंट सिस्टम्स और प्रोसेसेस। सिंपली अगर हम एक सिस्टम की बात करें या बहुत सारे सिस्टम की, तो जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनके बीच हमारा सीपीयू टाइम शेयर होता है। तो सीपीयू टाइम शेयर होता है तो सीपीयू क्या करता है कि वन बाय वन किसी ऑर्डर में डिफरेंट प्रोसेसेस को उठाता है या पिक करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू बारी बारी से सभी प्रोसेसेस को मिलता है। तो सीपीयू क्या करता है कि एक प्रोसेस को रन किया और जितनी देर उसका शेड्यूलर डिसाइड करेगा उतनी देर रन होगा, फिर वो प्रोसेस रेडी स्टेट में पहुंच जाएगा क्यू में, बैक टू क्यू, और शेड्यूलर फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेगा और उसको सीपीयू असाइन कर देगा। तो ओवरऑल रेडी स्टेट वो है जिसमें प्रोसेस के पास सीपीयू नहीं है एंड बाकी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। दिस इज द रनेबल स्टेट। तीसरा है रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। तो रनिंग इन द सेंस कि प्रोसेस हमारा रन कर रहा है, मीनिंग कि प्रोसेस के पास सीपीयू भी है और नेसेसरी रिसोर्सेस भी है। सीपीयू एंड नेसेसरी रिसोर्सेस, ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स, required accessories are there with the process, so it is in running state.
तो रनिंग स्टेट है तो दैट मीन्स के बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सीपीयू इज अवेलेबल विद द प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट इज द ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट. तो ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट वो है जिसमें प्रोसेस हमारा वेट कर रहा है किसी इवेंट को अकर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है तो इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई. सपोज करो तुमने जो तुम्हारा प्रोसेस है वो है फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, तो तुमने रन कराया. अब वो रन कर रहा है, बीच में उसको रिक्वायरमेंट हुई कि प्रोवाइड द नंबर फॉर विच यू वांट द फैक्टोरियल. जिस नंबर का फैक्टोरियल तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें कीबोर्ड से प्रोवाइड करना है. तो मैसेज आया. अब ये कुछ 1-2 सेकंड तो लगेंगे तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करने के, एंटर करने, तब तक सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा. तो अगर सिर्फ सीपीयू रिमूव होता है प्रोसेस से तब तो वो रेडी स्टेट में होगा, लेकिन सीपीयू के अलावा अगर और कोई रिसोर्स भी उससे रिमूव हो गया प्रोसेस से तो फिर वो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट में. तो रेडी और वेटिंग में अंतर ये है कि रेडी स्टेट में क्या है कि प्रोसेस के पास ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं एक्सेप्ट सीपीयू. बट ब्लॉक्ड एंड वेटिंग स्टेट में क्या है कि प्रोसेस के पास सीपीयू भी नहीं है और कम से कम एक रिसोर्स नहीं है. मतलब सीपीयू नहीं है और इसके अलावा कुछ रिसोर्स और नहीं है, तब वो वेटिंग स्टेट में. वेटिंग स्टेट में से ये रेडी में आ सकता है अगर सारे रिक्वायर्ड रिसोर्स इसको मिल जाए, और रेडी से रनिंग में आ सकता है कि सीपीयू भी इसको और मिल जाए. ठीक है, तो प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल इवेंट, बाहरी घटना घटित ना हो, और ये वेट करेगा जब तक कि हमारा सीपीयू और कुछ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना हो जाए, तब तक ये वेट करता रहेगा. तो ब्लॉक्ड और वेटिंग में प्रोसेस हमारा एक किसी रिसोर्स के लिए कम से कम एक या एक से ज्यादा रिसोर्स के लिए वेट करता रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट है, या फाइल टू ओपन है, कोई फाइल की रिक्वायरमेंट है, कोई ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, सीडी की है, या प्रिंटर रेडी, या कोई कमांड देना है, या सीपीयू से क्लिक करना है. ठीक है, तो किसी भी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए या रिसोर्स के लिए ये वेट करता रहेगा, और जैसे रिसोर्स कंप्लीट होंगे फिर जब इसको सीपीयू मिल जाएगा तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा. अब बात करते हैं स्वैपिंग की. तो जनरली क्या होता है कि जब प्रोसेस हमारा ब्लॉक्ड स्टेट में है तो जनरली ये इट्स एलिजिबल फॉर द स्वैपिंग टू डिस्क. अभी तो मेन मेमोरी में है, प्रोसेस अपनी 5 स्टेट में से किसी भी स्टेट्स में है, तो ये एग्जीक्यूशन स्टेट्स हैं. तो इनमें से 5 में से अगर किसी भी स्टेट में है तो ये मेन मेमोरी में ही होगा प्रोसेस. लेकिन स्वैपिंग इन द सेंस कि ये सेकेंडरी मेमोरी में भी स्वैप हो सकता है अगर वेटिंग स्टेट में है तो. या इवन ये भी कह सकते हैं कि हम जो अनयूज्ड पोर्शन है एक्टिव प्रोसेस का, वो डिस्क के स्वैपिंग के लिए पॉसिबिलिटी है वहाँ. स्वैपिंग इन द सेंस के ये प्रोसेस वहाँ डिस्क पे चला जाएगा, परमानेंट स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे, और हार्ड डिस्क से जो कुछ और प्रोग्राम हो सकते हैं रनिंग के लिए वो यहाँ मेमोरी में आ सकते हैं. और ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट सभी लोग जानते हो कि जरूरी नहीं है कि कंप्लीट प्रोग्राम और इसका डेटा हमारा मेन मेमोरी में हमेशा कंप्लीटली प्रेजेंट रहे. जैसे अभी हम मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे तो उसमें ही देखेंगे कि प्रोग्राम का कुछ पोर्शन ही मेमोरी में रह सकता है, वो इन सेंस में कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाए. अगर उतने प्रोग्राम नहीं है मेमोरी में रन करने के लिए, तो मेमोरी अगर खाली है तो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम रह सकता है. लेकिन अगर मेमोरी कम पड़ रही है और प्रोग्राम ज्यादा है तो हर प्रोग्राम का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन मेमोरी में रह सकता है, जरूरी नहीं कंप्लीट प्रोग्राम मेमोरी में हो. और जितना पार्ट प्रोसेस हो जाएगा उससे जो रेस्ट ऑफ द पार्ट वो हमारा डिस्क पर स्वैप होता रहेगा. ओके, तो स्वैपिंग के बाद
अब हम समझते हैं कि प्रोसेस के क्रिएट होने से लेके और इसके रन होने तक क्या एक्चुअल इवेंट परफॉर्म होती है। तो पहले जब प्रोसेस क्रिएट होता है, मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आता है, मतलब न्यू स्टेट में आता है। तो न्यू के बाद इसको कुछ और रिसोर्सेस मिलते हैं, तो ये वेटिंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो अब वेटिंग स्टेट में क्या है, ये वेट कर रहा है कुछ बाकी रिसोर्सेस के लिए, कंप्लीट रिसोर्सेस के लिए। अगर कंप्लीट रिसोर्स मिल गए तो ये रेडी स्टेट में आ जाएगा, और रेडी स्टेट से अगर इसको प्रोसेसर भी मिल गया तो फिर ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलर की। तो शेड्यूलर, जैसे कि बार बार अपना टर्म आ रहा था, सीपीयू शेड्यूलर। तो शेड्यूलर बेसिकली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है जो ये डिसाइड करता है कि जितने प्रोग्राम मेमोरी में है वो कितना टाइम के लिए रन होंगे, और दूसरा किस ऑर्डर में रन होंगे। जैसे सपोज करो कि 10 प्रोग्राम है, तो 10 प्रोग्राम सभी रन होने हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे प्रोग्राम कंप्लीटली रन हो सकता है पहले प्रोग्राम का कुछ पोर्शन रन हुआ, फिर सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को मिल गया, उसका कुछ पोर्शन रन हुआ, फिर तीसरे को मिल गया, फिर पहले पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया। तो इस तरह सीपीयू स्विचिंग करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस, कौन प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये काम शेड्यूलर का है, और शेड्यूलर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है। ठीक है, जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद अगर फर्दर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो उतना पोर्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर हार्ड डिस्क पे स्वैप भी हो सकता है। और कौन सा प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, तो उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी तो डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रोग्राम जिस ऑर्डर में मेमोरी में आए हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम आया मेमोरी में, पहला वो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर एक ही प्रोग्राम, फिर दूसरा आया, तो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है या पहले को ही कंटिन्यू करना है। फिर तीसरा आया, तो हो सकता है तीसरे की इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो पहले को छोड़ के तीसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे फिर दूसरे पे आ सकता है, फिर पहले या तीसरे पे जा सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि डिसाइड करेगा कि अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर के लिए रन कराना है। तो ये शेड्यूलर का काम है, ये सारी चीजें कि प्रोसेस जो मेमोरी में है उनको पिक करना और उनको सीपीयू एलोकेट करना जो कि रेडी स्टेट में है। तो अब शेड्यूलर क्या है, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम शेड्यूलर के बारे में ये पॉइंट्स और पढ़ लो। तो शेड्यूलर क्या करता है कि अगर कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर रहा है, इनपुट आउटपुट परफॉर्म हो रहा है किसी प्रोसेस के साथ, तो सीपीयू क्या है कि दूसरे प्रोसेस पे भी स्विच हो सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में 2 सेकंड भी लगते हैं तो इट्स टू मच एज कंपेयर्ड विद द सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। एक इंस्ट्रक्शन को समथिंग नैनो ऑर्डर के आसपास का टाइम चाहिए, तो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, और 1 सेकंड में से कम हम इनपुट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो उतनी देर में तो सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में यही होता है कि ये आइडियल नहीं छोड़ सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को एज पॉसिबल एज बिजी रखता है। अगर एक प्रोग्राम वेट कर रहा है रिसोर्सेस या सीपीयू के लिए, तो ये दूसरे पे स्विच कर देगा। और सीपीयू शेड्यूलर का ये भी काम है कि जो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं सिस्टम में और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो हर प्रोसेस को कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए। और ये भी हो सकता है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो, प्रोसेस ज्यादा हो, तो उनको बीच में कैसे शेयर करके मैनेज करना है, ये भी शेड्यूलर का काम है, जिससे कि हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस हो वो ऑप्टिमाइज्ड वे में रहे।
तो अब शेड्यूलर हमारे 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि ये जो है ये पिक करता है मेमोरी से कि कौन सा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आएगा, मतलब कि रेडी क्यू से कौन सा प्रोग्राम पिक किया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। रेडी क्यू में तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिनके पास सारी अपनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, बट दे आर वेटिंग फॉर द सीपीयू, वेटिंग फॉर द सीपीयू। तो रेडी क्यू से ये पिक करेगा और पिक करके उसको सीपीयू एलोकेट करेगा। तो एक तरह से ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन्वोकिंग प्रोग्राम फ्रॉम रेडी क्यू, प्रोवाइडिंग द सीपीयू। और ये क्या है कि बहुत मतलब जल्दी जल्दी नहीं ये इन्वोक होता है लॉन्ग टर्म जॉब शेड्यूलर या लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो ये स्लो होता है। और दूसरा हम आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे, तो इसको सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। तो ये जो है कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम या जॉब जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया था रन करने के लिए, वो एक्चुअली रन होगा। मतलब कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट, कौन सा प्रोसेस रन होगा जिसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का टास्क है। तो शेड्यूलर के बाद हम फिर से ये स्टेट्स पे एक बार फिर से आते हैं कि ये 5 स्टेट हैं प्रोसेस की, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग, टर्मिनेटेड। तो प्रोसेस जैसे ही सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, जब उसके पास ना सीपीयू है और ना ही कोई रिसोर्सेस है, तो उस टाइम उसकी जो स्टेट होगी वो न्यू स्टेट कहलाएगी। मतलब प्रोसेस जस्ट हैज स्टार्टेड, जस्ट हैज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी रिसोर्स एंड सीपीयू, कुछ नहीं है, तो वो न्यू स्टेट में। अब वो एडमिट हुआ मेमोरी में, तो उसको सारे रिसोर्सेस सपोज करो अवेलेबल हो गए। तो जब प्रोसेस को सारे रिसोर्स अवेलेबल हो गए तो फिर वो रेडी स्टेट में आ गया। प्रोसेस को जब सारे रिसोर्स अवेलेबल हो गए तो दैट विल कम इन रेडी स्टेट। रेडी स्टेट इन द सेंस कि अब इसके पास केवल सीपीयू की कमी है रन करने के लिए, और अगर इसको शेड्यूलर डिस्पैच करता है यानी सीपीयू प्रोवाइड कर देता है तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और रनिंग से अगर कोई फिर इंटरप्ट आई, कोई बाधा आई, कोई रिक्वायरमेंट आई, यानी शेड्यूलर ने अगर सीपीयू को हटा लिया वहां से, तो फिर ये रेडी में आ जाएगा। तो रेडी और रनिंग में केवल अंतर ये है कि सीपीयू का डिफरेंस, अगर प्रोसेस को सीपीयू मिल गया रेडी स्टेट में तो ये रनिंग में आ जाएगा, और रनिंग से रेडी में आएगा अगर ये कोई इंटरप्ट आ गई, मतलब सीपीयू हट गया, दूसरे प्रोसेस को पहुंच गया। अब रनिंग से देखो, ये अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई या किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर सीपीयू रिमूव होगा उस रनिंग प्रोसेस से, और कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो रिसोर्स की भी नीड होगी, तो अब ये वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। वेटिंग का मतलब क्या हुआ एक तरह से, वेटिंग इन द सेंस कि अब सीपीयू को मतलब प्रोसेस को सीपीयू की भी रिक्वायरमेंट है और कोई और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि इनपुट आउटपुट, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई, या किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे अगर तुम कोई वेबसाइट पे कुछ फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई डेटा फिल कर रहे हो, और उसमें कोई फाइल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, तो अब उस मोमेंट से वो प्रोसेस हमारा वेटिंग में आ जाएगा। जब तक तुम फाइल स्कैन करके या शेयर नहीं कर दोगे तब तक वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट का, और हो सकता है स्कैनर से स्कैन करने के लिए भी वेट करता करे, या प्रिंटिंग के लिए भी वेट करता रह सकता है। तो उस टाइम प्रोसेस जो है हमारा रनिंग से वेटिंग में आ जाएगा, और वेटिंग से रेडी में तब आएगा जब ये सारे रिसोर्स इसको मिल जाएंगे। अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट के लिए रुका हुआ था, तो इनपुट आउटपुट इवेंट अगर कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर रेडी में आ जाएगा।
और रनिंग से अगर ये कंप्लीट हो गया इसका एग्जीक्यूशन रनिंग स्टेट से, एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो गया तो फिर ये टर्मिनेटेड स्टेट पर, टर्मिनेटेड मींस कि यहाँ पर प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन। तो अब ये आफ्टर कंप्लीशन, जब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यानी प्रोसेस से टर्मिनेट हो गया, तो अब ये मेन मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, मेमोरी क्या है खाली हो जाएगी। तो शेड्यूलर क्या करेगा, कम मेमोरी को इसकी डीएलोकेट कर देगा, जिससे कि ये इसकी जो मेमोरी थी वो अब दूसरे प्रोसेस को या प्रोग्राम को मिल सके। तो ये पांचों स्टेट हैं किसी प्रोसेस की, जिसमें प्रोसेस यानी कोई प्रोग्राम अपनी ड्यूरिंग होल रन टाइम, जब मेमोरी में आया और मेमोरी से वापस जाने तक, पूरी रनिंग टाइम में इन पांच में से किसी एक स्टेट में एट ए टाइम मिलेगा। न्यू तो स्टार्टिंग में ही मिलेगा, फिर एक बार ये न्यू से रेडी वेटिंग रनिंग में आया तो फिर न्यू में तो स्टार्टिंग में अगर न्यू से आगे बढ़ गया तो फिर दोबारा ये न्यू में नहीं आएगा, और टर्मिनेटेड केवल लास्ट में आएगा जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो मेनली इन तीन स्टेट के बीच ये घूमता रहेगा, रेडी रनिंग वेटिंग। रेडी है मतलब सीपीयू की डिमांड है, सीपीयू मिल गया तो रनिंग में आ गया, सीपीयू हट गया और कोई और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई तो वेटिंग में आ गया, वेटिंग से अब सारे इसको रिसोर्स मिल गए तो रेडी में आ गया, फिर सीपीयू मिल गया तो रनिंग में आ गया। तो इन तीन स्टेट में से ये किसी भी स्टेट में स्विच कर सकता है हमारा, ठीक है। और टर्मिनेटेड तो मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया तब। तो अब पांचवा जो टर्मिनेटेड है वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया था कि टर्मिनेटेड के बारे में जो समझा है कि जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, दैट इज द स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा टर्मिनेट किया जाएगा। मतलब टर्मिनेट का मतलब यही है कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट है, नाउ मेमोरी शुड बी रिलीज्ड बाय द शेड्यूलर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अब मालूम है कि हाँ अब मेमोरी कितनी अवेलेबल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रिकॉर्ड में रहेगा कि कितनी मेमोरी अब अवेलेबल है टर्मिनेशन के बाद, टर्मिनेशन के पहले कितनी अवेलेबल थी, कौन से प्रोसेस उसमें रन कर रहे हैं, ऑल द रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब टर्मिनेटेड स्टेट अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो अब इससे सारे रिसोर्स रिमूव हो जाएंगे प्रोसेस से, और सीपीयू भी रिलीज हो जाएगा, और इसके बाद फिर ये प्रोसेस मेन मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटेड में ये पढ़ लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Okay, so by this we have completed today's discussion for the different states of a process. प्रोसेस की 5 स्टेट हमने डिस्कस कर ली हैं, और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो नाइट में पॉसिबल है वो होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। उसमें डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये स्लाइड शेयर नहीं हो रही क्या तुम्हारी? हाँ ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो he or she can ask freely, otherwise I am closing this meeting.